Hi guys, welcome to my channel. My name is Gargi and today in this video I am going to share with you ICSE Understanding Computer Studies Chapter 1, that is Categories of Computers and Computer Language. So let's get started. Okay, so this is a chapter. Okay, so this is a chapter Categories of Computers and Computer Language. In this, we are going to study the categories of computers and high level languages and machine level languages. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's get into the video. So in this video, we are going to study only two parts, the based on generation and based on type. Usually it has like 4 parts: based on generation, based on type, based on purpose and based on size. So let's get started with based on generation. So first I will like tell you the like generation, what is like generation here. So like here is generations. Okay, this is generation. Now, what is in human generation? What is human generation? See, like first generation, second generation, and third generations. Like going this type. Like there will be many generations of a person according to the family. Okay, like this type. But here in computer there is another thing. So what is the computer? Like whenever there is a generation, there is a new innovation or new invention. There is a new invention. Okay, that's what we call generation. Yeah, like there is a turning point. There is a turning point. Like there is a big thing, then it will be like converted to a small thing, and then etc. Okay friends, so this is the generation. Like it is a turning point. Like how many changes have there in the types of generations. So yeah, today in this video we are going to study that only. So I have explained you this much on the whiteboard, and I am going to start with this first generation computers. So first generation computers are starting from 1940, and like they were used between this time. They were used between these times 1940 to 1956. Now, the first generation computers started with the ENIAC. And yes, always remember in computer the full forms are so important. Okay, so yeah, the first, okay, this is the name of the मतलब कि ये एक नाम है कंप्यूटर का, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज होता था और जिसका मीनिंग है मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इट वाज फर्स्ट फुली ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड जर्नल पर्पस कंप्यूटर. ये बहुत ऑपरेशनल था और जर्नल पर्पस के लिए काम आता था. Now see, it was developed by Professor J. Prisco Eckart and John Mauchly in the USA. अब J. Prisco Eckart कौन है? John Prisco Eckart, दोनों जॉन ही हैं. ओके, और ये USA में है. It is the important point, you can note that. Okay. Now, and it was built by using the vacuum tubes. Vacuum, like focused on the spelling vacuum, because I am not saying vacuum, vacuum, because there are double U's. Malaki double U's, yes. Okay, now vacuum tube generation, and like it was so like big. Okay, so and also remember the high level languages. The high level languages of first generation computers are Fortran, that means formula translation,
IBM means international business machines in this generations. So what we have studied that there is the first computer name as ENIAC, electronic numerical integrator and calculator, and the high level it was made by J. Prisco, Eckart and John Mauchly in USA, and yeah, this was the thing. Now this features of first generation computers. Remember, these computers were very large in size and occupied a lot of space. बहुत सारी स्पेस ये बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बल्कि इसको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स वर द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स. ये वैक्यूम ट्यूब्स ही इसका फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही हम लोग यूज करते थे. दीज कंप्यूटर्स वॉज बेस्ड ऑन मशीन लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लेवल लैंग्वेजेस. इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या लेवल लैंग्वेजेस हैं इससे. लिमिटेशंस. दीज कंप्यूटर्स वर डिफिकल्ट टू ऑपरेट. मतलब कि इतने बड़े बड़े साइज में थे ना कि बहुत डिफिकल्ट हो गया था ऑपरेट करने का. अब देखो, they needed a high air conditioned system because of the tremendous amount of heat generated by the vacuum tubes. अब इसमें क्या कह रहे हैं? अब इसमें ये कह रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा इसको एक मतलब कि एयर कंडीशन तो उतने होते नहीं थे, इसीलिए उनको एक वेंटिलेटेड रूम चाहिए होता था, मतलब कि ठंडा रूम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे. इतनी गर्मी कि आप सोच भी नहीं सकते. दीज कंप्यूटर ऑल्सो, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, पावर का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे. ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है. सो गाइस, हमने फर्स्ट जनरेशन में भी क्या क्या पढ़ा है. हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में ये पढ़ा है दैट it was like the first computer name was used for first generation was ENIAC. That meaning is electronic numerical then and electronic numerical integrator, and the calculator. Okay, and the calculator. तो ये इसका नाम है. डोंट बी कंफ्यूज दैट ये क्या है. ये है कंप्यूटर का नाम. इट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर. डोंट बी कंफ्यूज कि ये हाई लेवल लैंग्वेज तो नहीं. हाई लेवल लैंग्वेज इज Fortran. लेट मी टेल यू, हाई लेवल लैंग्वेज इज Fortran. Meaning, what is the meaning? You will tell me. Formula translation and IBM. This is the high level language. Okay. Now friends, let us see what is here now in second generation. It was used between 1956 to 1963. अब देखो, इसमें जैसे कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स. अब इसमें हम लोग यूज करते हैं ट्रांसिस्टर्स की फोटो ये रही. ठीक है, यही ट्रांसिस्टर्स है. देखो, जब ये रिप्लेस हुआ वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, जब ये आया ट्रांसिस्टर्स, तब जो इन्वेंशन बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया. बिकॉज इससे मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज था फर्स्ट जनरेशन, बट अब ये स्मॉल इन साइज हो गया, फास्टर हो गया, रिलायबल हो गया. ओके, अब देखो इसकी स्पीड कहाँ से गई, मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड हो गई. मिली सेकेंड होता है थाउजेंथ ऑफ सेकेंड, एंड माइक्रो सेकेंड होता है बिलियंथ ऑफ सेकेंड. सॉरी, थाउजेंड, यस, मिलियंथ ऑफ सेकेंड्स. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड
सम हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थी, फॉर्ट्रन एंड आईबीएम। मैं बहुत फोकस कर रही हूँ लैंग्वेजेस पे, अच्छे से फोकस करो। देखो अब इसमें कौन सी लैंग्वेज थी, कोबोल एंड बेसिक्स। ये कोबोल और बेसिक्स क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो बेसिक्स किससे, बिगिनर्स, मतलब कि जो शुरुआती लोग हैं, बेसिक्स। जैसे कि हम लोग जो बिगिनर्स होते हैं मैथ्स के, तो हम लोग बेसिक्स सीखते हैं ना मैथमेटिक्स के, वैसे ही बेसिक लैंग्वेजेस जो बिगिनर्स के लिए होता है। और इसका शुरुआत भी वही है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और कोबोल का एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये ओ क्यों है, कोबोल को मतलब कि कॉमन का ही को होगा। अब देखो ये यूनिवैक और जो लियो है, अब ये जो यूनिवैक और लियो ये है कंप्यूटर के नाम, डोंट बी कंफ्यूज। आपको क्या क्या फोकस करना है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का और जो कंप्यूटर के नाम है, बस इस पे फोकस कर लो। और क्या उसका जनरेशन है और वो कब कब वो यूज हुआ था तब का। अब देखो अब इसके फीचर्स क्या हैं। ट्रांजिस्टर्स वाज द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड दे वर लाइक बहुत स्मॉलर इन साइज हो गए कंपेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन। एंड द प्रोसेसिंग स्पीड लाइक इंक्रीज फ्रॉम मिलीसेकेंड टू माइक्रोसेकेंड्स। अब गाइस हम लोग आ गए थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन अच्छे से देखिए, यस नाउ इट इज गुड। अब ये थर्ड जनरेशन क्या है, ये यूज होता था 1964 टू 1971। अब देखिए ये होता था 1964 टू 1971। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, आप देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज। अब इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ आईसीज मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे हुआ, ये बनते हैं 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मतलब कि 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता था। अब ये क्या होता था, जो 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स है ये पैक हो जाते थे, दे वर पैक्ड इन दी थिन पीस ऑफ एक मटेरियल है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इसमें ये पैक हो जाते थे और बन जाते थे आईसीज। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आईसी चिप। आईसी चिप मतलब कि चिप की तरह बन गए। तो इसमें ये सब यही बता रहे कि वो सब क्या बने, आईसी चिप्स बन गए, मतलब कि वैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देखो यही लिखा है इसमें, और वो बन गए आईसी चिप। अब देखो द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब कि बड़े कंप्यूटर्स होते हैं साइज में। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या इन्वेंशन एक और हुआ, इससे हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन से हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार। अब इसके ये एग्जाम्पल्स भी देखो क्या है, IBM 360 एंड हनीवेल 200 इसका एग्जाम्पल है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई, आईसी, जो क्या करती है, रिड्यूस साइज करती है, रिड्यूस कंप्यूटर का। अब इसकी कैलकुलेशन नैनो सेकेंड्स में हो गई, मतलब कि बिलियंथ ऑफ सेकेंड्स। दियर कैपेसिटी टू होल्ड डाटा मतलब कि इनकी कैपेसिटी बढ़ गई डाटा होल्ड करने की और स्टोरेज होल्ड करने की। ओके अब चलिए फोर्थ जनरेशन तो रिसेंटली है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब देखो ये ट्रांजिस्टर्स की पिक्चर है, ऐसा ट्रांजिस्टर्स होते थे। लेट मी शो यू लाइक दिस ये है माइक्रो प्रोसेसर्स, ओके, एंड दिस इज द ट्रांजिस्टर्स। Now let us see the microprocessors. अब ये कब यूज होते थे, 1971 टू 1985। माइक्रो प्रोसेसर जब आए तो एक इमरजेंसी हो गई माइक्रो कंप्यूटर्स की। जो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं। अब देखो आईकोर जो है, आईकोर प्रेजेंटली द आईकोर सीरीज इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। ये आईकोर क्या है, ये किससे डेवलप हुआ था, इंटेल कॉर्पोरेशन से डेवलप हुआ था आईकोर इन यूएसए। अब देखो इसका मतलब कि ये बहुत पहले की बुक है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा उनके हिसाब से प्रेजेंट क्या है वो कह रहे हैं।
अब देखो, हाँ क्योंकि विंडो 8 का है तो इसीलिए। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रेजेंटली अभी इंटेल कोर i7 आया है। अब ये यूज होता है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स में। अब देखो इसमें पीसी का मतलब तो पता है पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो। अब मैन्युफैक्चर्ड किससे हुआ, IBM से हुआ, एप्पल से हुआ, HCL से हुआ, डेल से हुआ, कॉम्पैक्ट से हुआ, लेनोवो से एक्सेट्रा। अब देखो बिलोंग टू दी माइक्रो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी थी, SQL आई थी, C आई थी, C++ आई थी, जावा आई थी, एक्सेट्रा। दे वर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, मतलब कि एग्जांपल्स कंप्यूटर लाइक एप्पल 1 आया था, IBM 370, हनीवेल 6080। ओके। अब देखो फीचर्स क्या है इसके, मतलब कि इसकी ये जर्नल पर्पस के लिए यूज होने लगा। स्टोरेज और कैपेसिटी बढ़ गई टेराबाइट टू पेटाबाइट। अब देखो मैं तुरंत इसको बिना पढ़े बता देती हूँ, 5th जनरेशन में क्या आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि बात कर सके रोबोट्स हमसे। ओके। अब देखिए ये है नॉलेज कॉर्नर, लाइक फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लानी थी। अब यही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत डिटेल से नहीं दिया गया, प्रेजेंट और फ्यूचर का ही है। सो यस यू कैन टेक इट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू, सो गाइज ये देखिए यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि चेस खेल रहे हैं। अब देखो अब आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बेस्ड ऑन जनरेशन करेंगे, अब बेस्ड ऑन टाइप करेंगे ये वाला। हाँ अब देखो इसमें बेस्ड ऑन टाइप में क्या है, 3 टाइप्स की टाइप्स है, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स ने हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एन एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन वेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि क्या है, दी डाटा इनपुट टू अ कंप्यूटर इज कंटिन्यूअस इन। देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करता है। अब ये कैसे मेजर करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रही हूँ गाड़ी। अब कुछ देर बाद मैं जिस डेस्टिनेशन में मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गई। अब क्या स्पीड होगी, अब तो बाइक बंद हो गई तो 0 स्पीड होगी। अब फिर से मैं चला रही हूँ, मैं इस बार 80 की स्पीड में चला रही हूँ। अब देखो जो फिजिकल क्वांटिटी ना मतलब कि हमेशा एक ही नहीं रह सकती, बदलती रहती है। थर्मोमीटर में कभी हमें हाई फीवर आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी एक चीज़ पे हम लोग टिकता नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, तो उसी को हम लोग कहते हैं। मतलब कि ये क्या करता है, ये पहले कंपेयर करता है, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको ये कंपेयर करता है, मतलब कि जितनी क्वांटिटीज है 70, 80, 0 उसका को कंपेयर करके फिर हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है। इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसका एग्जांपल है मीटर स्केल, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। दैट्स व्हाट वी कॉल एनालॉग कंप्यूटर्स। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल। ये शायद है स्पीडोमीटर। ओके। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, अब ये बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। देखो बाइनरी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, बाइनरी कंप्यूटर्स होते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में, मतलब कि ये सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म ही करते हैं। मतलब कि जैसे कि 1 0 1 ये हो गया 8। आई एम लाइक टेलिंग यू, अब देखिए ये 0 और 1 0 1, अब ये मैं बस बता रही हूँ, ये लाइक ऐसे होता नहीं है, मतलब कि ये ऐसे, इसका मतलब ये 0 और 1 का मतलब कुछ और होगा, बट आई एम लाइक टेलिंग यू बिकॉज अभी मुझे भी नहीं पता कि बाइनरी नंबर्स मतलब कि उनके कोड्स क्या होते हैं पर्टिकुलर। देखो 1 और 0 जो होते हैं, 1 और 0 बस इसी में बाइनरी लैंग्वेज लिखाती है। मतलब कि अगर हमें अल्फाबेट लिखना हो ABCD, ऐसे तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अल्फाबेट लिखना हो, 1 2 लिखना हो, क ख ग लिखना हो, जो भी लिखना है मशीन को, किसी का नंबर लिखना, कुछ भी, सब कुछ 1 और 0 की लैंग्वेज में ही लिखाएगा। अब उसका एक मतलब कि कोड होता होगा, जो पर्टिकुलर चीज कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको ही कहते हैं हम लोग बाइनरी फॉर्म।
ठीक है, इसी को हम लोग बाइनरी फॉर्म कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो जैसे कि कुछ भी अगर हमें लिखना, देखो बाइनरी नंबर्स जो मशीन है, मतलब कि जो कंप्यूटर है, वो डायरेक्टली समझ जाता है, लाइक विदाउट एनी ट्रांसलेटर, डायरेक्टली, लाइक डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली समझ जाता है वो, दैट व्हाट वी कॉल बाइनरी। और हर चीज, आजकल तो हम लोग ABCD ऐसे लिख रहे हैं ना, पर तब भी अंदर कुछ ऐसा प्रोसेसर होगा जो भी, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है गार्गी, लिख दिया लैपटॉप में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्गी, तो लैपटॉप अब क्या करेगा, अब हमें नहीं पता चलेगा कि वो बाइनरी नंबर्स में लिखा है कि नहीं, वो खुद बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर आएगा रिजल्ट। पर हमारे इसमें, क्योंकि अब हाई लेवल लैंग्वेज है यार, नई जनरेशन है, होगा ही, पर पहले बहुत डिफिकल्ट होता होगा ये सारे कोड्स याद करना। मतलब कि हर चीज बाइनरी होती है, मतलब कि अगर हमें लिखना है कंप्यूटर में तो 1 और 0 में ही लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि ए लिखना है तो 1 1 0 1 1 1 0 1 या 1 एक और 1 ऐसे करना है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं अ डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट दी डाटा इन बाइनरी फॉर्म, मतलब कि 1 और 0 के फॉर्म में। मतलब ये देखो 1 और 0, जिस मतलब कि इसमें एक और चीज लिखी है, यही होता है। अब देखो अब इसमें क्या लिखा है, 0 मीन्स ऑफ, मतलब कि 0 का मतलब कुछ नहीं तो ऑफ ही मान लो, और 1 मीन का ऑन हो जाएगा। लो सिग्नल पे 1 मीन का ऑन, हाई सिग्नल मतलब कि यही होगा, मतलब कि लो सिग्नल पे ऑफ होगा और हाई सिग्नल पे ऑन होगा। इट गिव्स रिजल्ट इन, अब देखो मैंने बाइनरी फॉर्म बताया, अब इसको छोड़ दो, जो ऑन ऑफ का सारा बताया है आप यही समझो जो मैंने बताया कि हाँ मशीन इसको डायरेक्टली समझ जाती है, पर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये डायरेक्टली समझ जाते हो किसमें होता है, 1 और 0 के फॉर्म में कुछ भी लिखना हो तो 1 और 0 पहले के ज़माने में लिखा जाता था। अब देखो ये किस में रिजल्ट देती है, हमें डिजिट्स में देती है रिजल्ट। जैसे कि कैलकुलेटर एग्जाम्पल, हम लोग लिखेंगे डिजिट्स में और आंसर भी डिजिट्स में मिलेगा। ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर डिजिटल इन नेचर, मतलब कि नेचर में पहले जब शुरुआत हुई थी तब तो वो बाइनरी नंबर ही तो यूज करता होगा। डिवाइसेज लाइक कैलकुलेटर, डिजिटल स्कोरबोर्ड, डिजिटल क्रिकेट स्कोरबोर्ड, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। और यही सब मतलब कि जो हम चीज डिजिट्स में डाले और इसका आंसर डिजिट्स में मिले, वही होता है डिजिटल स्कोरबोर्ड। अब बाइनरी नंबर्स में ये नहीं कि अरे कैलकुलेटर बाइनरी नंबर है, वाह वाह वाह, कैलकुलेटर में हर चीज़ होती है। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर समझो, ठीक है। हाइब्रिड का कंप्यूटर क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। ये है एनालॉग कंप्यूटर्स और ये है डिजिटल कंप्यूटर, इसका मिक्सचर होता है ये। अब ठीक है, ये दोनों फॉर्म में लाइक कंपेयर, मतलब कि बेस्ट चीज़ में ये देते हैं, आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल ये है, ओके यही होता है मिक्सचर। जो चीज एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स अच्छे से नहीं कर सकते। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हाइब्रिड कंप्यूटर समझ आया, सब कुछ समझ आया, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई भी डाउट है ना यार यूट्यूब क्या बनाया है, किस लिए बनाया है, वो कमेंट सेक्शन उस पे करो, लिखो, तभी तो समझ आएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हाँ गाइस, ये मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया, अब जब ये सेट हो जाएगा तो मैं जल्दी इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगी। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और तब तक के लिए बाय।